Hello, friends. Welcome to the third part of chapter number 6 Life Processes of Grade 10. In the previous section, we saw how oxygen is transported through lungs alveoli towards blood vessels by diffusion pressure. लेकिन ये डिफ्यूजन प्रेशर हर जगह पे ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए सफल नहीं हो सकता. ऐसा इसलिए because size of our body is quite large. So instead of diffusion pressure, we have a special respiratory pigment which is called hemoglobin. This hemoglobin carries oxygen from lungs towards different parts of our body. This respiratory pigment is found inside blood. So you can see in figure, blood consists of certain types of cells such as RBC, that is red blood cells. These red blood cells contain a pigment called hemoglobin, which combines with oxygen and transports this oxygen to various parts where it is required. So today we are going to discuss about transportation in human beings. So friends, not just oxygen, but transportation system also transports various types of materials in our body, such as useful materials as well as wastes which are generated in body. So human beings have a complex organ system that helps them to transport these materials. So let us see what are the different components of transportation system. Number 1, fluid connective tissue, that is blood. Number 2, a thick muscular organ, that is heart, which acts like a pumping system. Number 3, blood vessels, which are tube-like structures that helps to transport blood in various parts. And number 4, lymphatic system. फ्रेंड्स, जिस तरह से एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें बहुत ज़्यादा घर हों, उनमें अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो उसके लिए कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे? सबसे पहला तो वाटर इटसेल्फ, दूसरा एक मोटर चाहिए होगी, तीसरा 2 प्रकार की पाइपलाइंस. सो यही सेम टू सेम प्रोसीजर हो रहा है हमारी बॉडी में. Even in our body, we have a transportation system just like water transportation system in a building. यहाँ पे वाटर की जगह ली है ब्लड ने, मोटर की जगह ली है हार्ट ने, एंड पाइपलाइंस की जगह हमारे पास है ब्लड वेसल्स. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन अबाउट दीज कंपोनेंट्स इन डिटेल. नंबर 1, ब्लड. ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. जैसा आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इसे हम टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स मौजूद हैं. सिंस वी नो टिश्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells. So blood has 3 types of cells, that is RBC, red blood cells, WBC, white blood cells, platelets, and a fluid matrix which is called plasma. You can see all of these things on the screen. These are RBC, this is WBC, these are platelet cells, and this is plasma. Plasma is a pale yellow colored fluid which has some proteins or lipids. It helps to transport food, carbon dioxide, and nitrogenous wastes in dissolved form. Here, RBC consists of hemoglobin, which is a red colored pigment that helps to transport oxygen. Here, hemoglobin combines with oxygen and forms oxyhemoglobin. उसके बाद वो ब्लड के साथ फ्लो होके अलग अलग पार्ट्स में इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है. Blood also transports many other types of salts apart from nitrogenous salts. Now the second and the most important organ in our body is heart, which is the component of transportation system. सबसे पहले बात करते हैं हार्ट के शेप और साइज के बारे में.
If we talk about size of heart, it is as bigger as like a closed fist. एक बंद मुट्ठी जितना बड़ा होता है. And has conical shape. कोन जैसा शेप होता है इसका. If we talk about location, it is located between the gap of lungs slightly towards left. हमारे लंग्स के बीच में जो गैप होता है उसके बीचों बीच हार्ट मौजूद है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ. Now if we talk about structure of heart, then we can say human heart has 4 chambers. हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स हैं. ये 4 चेंबर्स इसीलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी में 2 प्रकार के ब्लड फ्लो होते हैं. एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. इन दोनों को सेपरेट रखने के लिए वी हैव 4 चेंबर्ड हार्ट. अब यहां पे जो ऊपर के 2 चेंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं एट्रियम्स, और नीचे के जो 2 चेंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. आप ध्यान से देख सकते हो जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल्स बहुत ही ज़्यादा थिक हैं, लेकिन जो एट्रियम्स हैं उनकी वॉल्स बहुत ही थिन यानी पतली है. ऐसा इसलिए बिकॉज वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को फुल प्रेशर से पुश आउट करते हैं हार्ट से. सो इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए वेंट्रिकल्स की वॉल्स बहुत ही थिक और इलास्टिक हैं. लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है वो लीस्ट प्रेशर वाला ब्लड होता है जो एंटर होता है एट्रियम से, और क्योंकि वहां पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता इसीलिए वॉल्स ऑफ एट्रियम आर थिन. Now all these chambers are separated by a dividing wall which is called septum. इन चारों ही चेंबर्स को सेपरेट करती है एक डिवाइडिंग वॉल जिसे हम कहते हैं सेप्टम. Between right atrium and right ventricle there is a valve which is called tricuspid valve. अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये आपको वाइट कलर्ड वाल्व दिखेंगे जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. एंड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल यू विल ऑब्जर्व वन मोर वाल्व विच इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व. ये दोनों ही वाल्व्स का फंक्शन क्या है? एक्चुअली दीज वाल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड सो दैट डीऑक्सीजनेटेड एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. वाल्व्स जो हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, ब्लड को पीछे की तरफ फ्लो होने से रोकते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन अवर हार्ट. फ्रेंड्स, हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है. अब ये डबल सर्कुलेशन क्यों होता है उसके बारे में हम आगे समझेंगे. फर्स्ट सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लंग्स में, जहां पे हमने देखा एल्वियोलाइज उन्हें प्यूरिफाई कर देते हैं बाय डिफ्यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड. दोबारा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाता है और फिर उसे दोबारा भेजा जाता है अलग अलग पार्ट्स में. सो इन दिस वे डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन हार्ट. So now let us understand how this double circulation takes place step by step. First of all, the blood which is rich in carbon dioxide, that is deoxygenated blood, comes into right atrium through superior or inferior vena cava. ये 2 इनलेट्स जो हैं ये हमारी बॉडी की वेन्स से जुड़े हुए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है. सभी बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो कलेक्ट होके सबसे पहले एंटर होता है राइट साइड में, दैट इज राइट एट्रियम. नाउ थ्रू राइट एट्रियम द ब्लड विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल. और आप देख सकते हो ये एरो की तरफ, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है इनटू पल्मोनरी आर्टरी. अब पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, जहां
लंग्स में मौजूद एल्वियोलाइज उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के ऑक्सीजन उसमें डिफ्यूज कर देंगी। सो इस तरह से लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। ब्लड विल बिकम ऑक्सीजन रिच, दैट इज ऑक्सीजनेटेड। नाउ अगेन थ्रू लंग्स द ब्लड विल कम बैक टूवर्ड्स हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स से ब्लड वापस एंटर होगा हार्ट के अंदर लेफ्ट हिस्से में, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड एंटर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड विल पुश आउट फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ऑर्टा। इस तरह से फर्स्ट सर्कुलेशन में हमारा ब्लड गया लंग्स में जहां उसका प्यूरिफिकेशन हुआ, एंड सेकेंड सर्कुलेशन में ब्लड गया अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। So this is how double circulation takes place in our heart. Now let's see why double circulation is necessary. Friends, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एनिमल्स दो कैटेगरीज में आते हैं। एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स और दूसरे होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अपने बॉडी का टेम्परेचर एक सर्टेन रेंज तक मेंटेन करना ज़रूरी रहता है, वेयरएज अगर हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ मैच हो जाता है। सो एज ऑफ दैट रीजन वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कभी मिक्स नहीं होता, और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है बाय सप्लाइंग एनर्जी। Now animals such as fishes or reptiles, they have least energy requirements. It is because they are cold-blooded animals. और क्योंकि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, इस वजह से इनका हार्ट या तो 2 चेम्बर्ड होता है या तो 3 चेम्बर्ड होता है। जैसे हम बात करते हैं फिशेस की, तो फिशेस का हार्ट होता है सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट, जिससे इनका जो ब्लड होता है इट गेट्स पम्प्ड डायरेक्टली इनटू देयर गिल्स, जहां गिल स्लिट्स की मदद से वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ब्रीथ करती हैं, वही ऑक्सीजन उनके ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, एंड इन दैट वे इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड। Thus, blood goes only one cycle of passage through the body, which means फिशेस की बॉडी में सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन से ही ब्लड पूरे पार्ट्स में पहुंच जाता है। Now let us talk about third component of transportation system, that is blood vessels. Since we have seen our body carries 2 types of blood, oxygenated and deoxygenated. So in order to carry these 2 types of blood separately, we have 2 different blood vessels, namely arteries and veins. हम सबसे पहले इन दोनों का फंक्शनल डिफरेंस देखेंगे और फिर इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखेंगे। सो अगर हम बात करते हैं आर्टरीज की, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट वेन्स, वेन्स हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे पार्ट्स से कलेक्ट करके हार्ट की तरफ ले आता है। Now let's talk about structural difference. Walls of arteries are thick and elastic. ये thick और elastic इसलिए है क्योंकि arteries हार्ट का हाई प्रेशर ब्लड अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती है। So in order to sustain that pressure, walls of arteries are thick and elastic. But if we talk about veins, then walls of veins are thinner. इट्स बिकॉज वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो इतना प्रेशराइज्ड ब्लड नहीं होता। ऑल्सो आर्टरीज डू नॉट हैव एनी वाल्व्स, आर्टरीज में कोई वाल्व्स मौजूद नहीं होते। बट इफ वी टॉक अबाउट वेन्स, वेन्स पोजेस वाल्व्स। दीज वाल्व्स ऑल्सो प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड so that oxygenated and deoxygenated blood do not mix with each other.
So this is the difference between arteries and veins. Arteries divides into smaller and smaller vessels which are called capillaries to bring blood in contact with all the individual cells. फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में आर्टरीज और छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड होती जाती हैं जिसका नेटवर्क हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है. इन छोटे छोटे वेसल्स को हम कहते हैं कैपिलरीज, जिनकी वॉल्स बहुत ही पतली होती हैं, हैविंग थिकनेस ऑफ अबाउट जस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल. थिनेस्ट लेयर होने की वजह से इनके थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है. सो exchange of blood and surrounding cells takes place across this thin wall. जहां कैपिलरीज का नेटवर्क एक साथ इकट्ठा होकर जुड़ जाता है वहां बनती है वेन्स. यही वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं अलग अलग पार्ट्स से अपने हार्ट की तरफ. सो दिस इज हाउ डिफरेंट blood vessels function in our body. Maintenance by platelets. What happens if there is a leakage in blood vessels? This can lead to the loss of blood from the system, which would minimize the blood pressure and could reduce the efficiency of pumping system. So in this case, platelet cells plug around the leakage of vessels and help in clotting of blood. So जैसा आप देख सकते हो, अगर किसी ब्लड वेसल में ब्रेकेज या लीकेज हो जाता है तो उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा और इस वजह से ब्लड लॉस होगा. सो उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए प्लेटलेट्स जो हैं वो इस तरह का स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे बहुत सारे आरबीसीज एक साथ इकट्ठा होकर ब्लीडिंग को रोक देते हैं. Now let us talk about fourth component of transportation system, that is lymph. First of all, let us understand what is lymph. We have discussed earlier that walls of capillaries are very thin. क्योंकि ये walls बहुत ही thin होती हैं और इनकी thickness just एक single cell के layer जितनी होती है, तो इनकी porosity बहुत ज़्यादा होती है. Porosity in the sense they have small pores in them. अब जब इन कैपिलरीज से ब्लड फ्लो होता है तो उसके थ्रू कुछ सब्सटेंसेस लीक आउट होके एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं. इन सब्सटेंसेस में मौजूद है प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन. व्हेन ऑल दीज सब्सटेंसेस एस्केप थ्रू वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, दे कलेक्ट इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यूज. This fluid is called lymph. It is a colorless fluid like plasma and contains less protein compared to plasma. Now, since this lymph consists of many important components, it is necessary to send it back towards our heart. For this purpose, we have lymphatic system, which consists of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, and a vein. जैसा आप देख सकते हो, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो ग्रीन कलर्ड कैपिलरीज आपको दिख रही हैं, ये सबसे पहले लिम्फ को इकट्ठा करती हैं और इसे पहुंचाती है लिम्फेटिक वेसल्स में. यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स इन्हें ले जाते हैं वेन्स की तरफ और फिर वेन्स इन्हें पहुंचाते हैं हमारे हार्ट में. सो इन दिस वे दिस इंपॉर्टेंट फ्लूइड गेट्स बैक टू अवर हार्ट. लिम्फ हैव some functions which it performs in our body. Lymph carries digested fat and it also absorbs fat from inner lining of small intestine at villi. So in this way, lymphatic system works in our body. Now let us talk about transportation in plants. We all know that plants cannot move from one place to another. And also, most of the tissues present in plants contains dead cells. Due to this reason, energy requirements in plant is quite less compared to energy requirement in animals. Also, plants are available in various sizes.
For examples, herbs, shrubs and trees. herbs बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, shrubs जो हैं वो मीडियम साइज्ड प्लांट्स होते हैं और ट्रीज सबसे टॉलेस्ट प्लांट्स होते हैं. सो इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेरियस साइजेस में अवेलेबल होंगे और इनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी के मुकाबले काफ़ी स्लो होते हैं. हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन दो अलग अलग टाइप के टिश्यूज से होता है जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं. These are classified as xylem and phloem. We have also seen components of xylem as well as components of phloem in 9th standard. So let us see one by one how water and food are transported in plants. Transportation of water in plants occur due to xylem. Here xylem conducts water by two strategies. Number one, osmotic pressure created by roots, and number two, suction of water towards aerial part due to evaporation of water molecules through stomata. This process is also called transpiration. Friends, roots जो हैं वो osmotic pressure create करके मिट्टी में मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिस वजह से पानी रूट्स की मदद से ऊपर की तरफ जाता है प्लांट्स की बॉडी में. इसके अलावा जो लीव्स हैं उनके स्टोमेटा जब ओपन रहते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करके एक सक्शन क्रिएट करते हैं. जस्ट लाइक हाउ वी सक आउट लिक्विड फ्रॉम स्ट्रॉ, इन द सेम वे ट्रांसपिरेशन कॉजेज अ सक्शन दैट क्रिएट्स अ प्रेशर which pulls up the water towards the aerial parts of the plant. This is how water transports from roots towards the upper part of the plant. Similarly, transportation of food takes place with the help of phloem tissue. Phloem tissue जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना हुआ स्टार्च या ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. स्टार्च और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा फ्लोएम एमिनो एसिड्स और बाकी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है. इन सभी सब्सटेंसेस को स्पेशली डिलीवर किया जाता है स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स में. यह ट्रांसलोकेशन होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की मदद से, जहां ये दोनों ही कंपोनेंट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं. अब जिस तरह से हमने देखा जाइलम में कुछ नेचुरल फोर्सेस की मदद से पानी ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन फ्लोएम में ऐसा देखने नहीं मिलेगा. बिकॉज इन फ्लोएम वी नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP टू ट्रांसपोर्ट फूड in both upward as well as downward direction. So in case of translocation, phloem uses ATP as an energy source to transport food materials in all directions. This is how transportation of water and food takes place in plants. So this brings us to the end of third part of chapter number 6, life processes. In the next video, we will discuss about last life process, that is excretion. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Vigyan Shala and also press the bell icon for more notifications of new videos.